पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उस बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, आज किसका क्रम है? लास्ट क्लास में नैसर्गी ने किया था। राज्य मारो છે गौरी। हाँ ठीक है, करो। भूमि में ना रेकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हाँ કર્યું રહેશે। ઓકે, લાસ્ટ ક્લાસમાં આપણે સેવા સામગ્રીના દોષોનું નિવારણ જોઈતું, તો એમાં આપણે એમ જોઈતું કે રાજાએ સમજાવ્યું હતું કે જે વત્સાસુર ના એક્ઝામ્પલથી વત્સાસુરનો જે ભગવાને એનો વધ કર્યો હતો, તો એમાં વ્રજભક્તોના મનમાં રહેલા જે દોષો હતા એનું બાહ્ય પ્રગટ સ્વરૂપ વત્સાસુર હતો। એટલે એને મારીને ભગવાને વ્રજભક્તોના મનમાં જે રહેલા દોષો હતા એની નિવૃત્તિ કરી। એટલે આપણે એના પરથી એવું સમજી શકીએ કે સેવામાં આપણે જે પણ વસ્તુનું સમર્પણ કરીએ છીએ તો એ જે બધી વસ્તુઓનો ઉપભોગ દ્વારા પછી આપના દોષોની પણ નિવૃત્તિ થાય છે। એટલે પછી આપણને રાજાએ પેલા ગંગાજીના ઉદાહરણથી સમજાવ્યું હતું કે ગંગાજીમાં પણ જે મળતું જે પ્રત્યેક જલ છે તો એ ગંગારૂપ બની જાય છે। એટલે એ જલનું પછી સ્વતંત્ર રૂપથી એના ગુણ દોષોનો આપણે વિચાર કરતા નથી। એટલે એવી રીતે જો આપણે પ્રભુની સેવામાં જે પણ વસ્તુનું આપણે સમર્પણ કરીએ છીએ તો એ વસ્તુમાં બ્રહ્મતા અને નિર્દોષતા આવી જાય છે। એટલે પછી એમાં દોષરૂપ રહેતા નથી। એટલે એ વસ્તુનો જો ઉપયોગ આપણે કરીએ, આપની અંદર એ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો એ વસ્તુમાં જે સાંસારિક ભાવોની આપણા એમાં બુદ્ધિ આપણે ન કરીને પછી ભગવત સમર્પિત એ બધી વસ્તુઓ ભગવત સમર્પિત થઈ જવાને કારણે આપણામાં ભગવદીયત્વ વધે છે। અને એટલે આંતરિક રૂપથી એ બધા દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે। તો આપણે એવું લાસ્ટ ક્લાસમાં સમજ્યા હતા। અને આજે છે ગુણગાનનો ટોપિક, તો ત્યાંથી હું સ્ટાર્ટ કરું છું। ગુણગાન। શ્રી કૃષ્ણે બકાસુરનો વધ કર્યાના સમાચાર ગોપ બાળકોએ જ્યારે શ્રી નંદરાયજી વગેરે વ્રજવાસીઓને આપ્યા ત્યારે તેઓને શ્રી ગર્ગાચાર્યજી દ્વારા કહેવાયેલી વાત યાદ આવી ગઈ। એટલે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણે બકાસુરનો વધ કર્યો અને એટલે એ જે ન્યૂઝ હતા તો નંદરાયજીને વ્રજવાસીઓએ આપ્યા ત્યારે ગર્ગાચાર્ય દ્વારા જે વાત કહેવાઈ હતી તે નંદરાયજીને યાદ આવી ગઈ। તો શ્રી ગર્ગાચાર્યજીએ કહ્યું હતું કે આ બાલક નારાયણ સમાન ગુણવાળો થશે અને આના દ્વારા જ તમે બધી બાધાઓને પાર કરશો। એટલે ગર્ગાચાર્યજીએ કીધું હતું કે આ જે છે બાળક તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને એ બધા જ ગુણો વાળા છે। અને એટલે ભગવાનના પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં જે બધા ગુણો છે એવા ગુણો ધરાવે છે। અને એટલે એના દ્વારા તમારામાં જે પણ ઓબ્સ્ટિકલ્સ આવશે એ બધાને એ પાર કરશે। તો એ વાત એમને નંદરાયજીને યાદ આવી ગઈ। અને પછી અહીંયા છે કે શ્રી નંદરાયજી પોતાના બાળકની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા। આમ શ્રી નંદરાયજી વગેરે વ્રજવાસીઓ શ્રી કૃષ્ણના અનેક અદ્ભુત પરાક્રમોનું વર્ણન સદાય કરતા રહેતા। એટલે શ્રી નંદરાયજી શ્રી કૃષ્ણની બહુ પ્રશંસા કરતા હતા, વખાણ કરતા હતા। અને નંદરાયજી અને બધા વ્રજવાસીઓ જે છે શ્રી કૃષ્ણના આવા જે બધા એમની લીલાઓ હતી એનું ગુણગાન કરતા હતા। ભગવાનના ગુણ વર્ણનમાં તેમને એટલું સુખ મળતું કે તેઓ સંસારની સમસ્ત વેદનાને ભૂલી જતા। એટલે ભગવાનમાં એ લોકો ભગવાનની આ બધી જે લીલા હતી એનું ગુણગાન કરતા હતા અને એવું કરતા કરતા એ બધું જ ભૂલી જતા હતા।
તેમને પોતાના દેહ તથા જગતનું પણ ભાન રહેતું નહોતું. ભગવાને અદ્ભુત લીલાઓ દ્વારા તેમને જગત ભૂલાવી દઈને પોતાનામાં આસક્ત બનાવ્યા હતા. એટલે ભગવાને આ વ્રજવાસીઓને ને બધાને વ્રજ ભક્તોને એમની લીલાઓ દ્વારા બધું ભૂલાવીને પોતાનામાં આસક્ત બનાવી દીધા હતા. આ જ તેમનો ભગવાનમાં નિરોધ હતો. ભગવાનના આ કથનથી એ સૂચિત થાય છે કે આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીઓએ પણ ભગવદ લીલા સ્વરૂપ ગુણ નામોનું શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પ્રેમપૂર્વક કરતા રહેવું જોઈએ. શ્રી નંદાદી વ્રજભક્તોને જેમ ભગવાનમાં પ્રેમ સિદ્ધ થયો તેમ આધુનિક પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સાધકને પણ પૂર્વોક્ત સાધનો કરવાથી ભગવાનમાં પ્રેમ સિદ્ધ થશે જ. એટલે અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે આપણે જ્યારે શ્રવણ કીર્તન અને સ્મરણ સેવા અને સેવાના અનવસરમાં ભગવદ ગુણગાન આપણે કરીએ તો ભગવાનમાં આપણને પ્રેમ સિદ્ધ થશે. એટલે આપણે જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે બતાવેલા ગ્રંથો છે એ શાસ્ત્રનું આપણે અનુસંધાન કરીએ, ભાગવતનું 84-252, વૈષ્ણવની વાર્તા, સ્વમાર્ગીય ગ્રંથોનું સાહિત્ય, એ બધાનું આપણે જ્યારે અનુસંધાન કરીએ અને મહાપ્રભુજીએ આપણને બતાવેલા જે એ સાધનોનું અનુસરણ આપણે કરીએ તો આપણને પણ ભગવાનમાં પ્રેમ થશે. એટલે આપણને પણ ભગવાનમાં પ્રેમ થશે. એટલે આપણે જ્યારે સેવામાં આપણે જો પ્રારંભિક અવસ્થામાં તો આપણને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ના હોવાને કારણે એટલે સેવા સંબંધી જે આપણે ક્રિયા દેહથી આપણે કરીએ છીએ તો એમાં પ્રેમના અભાવને કારણે આપણા હૃદયમાં એવો ભાવ આવી નથી શકતો. પણ આપણે વ્રજલીલાનું અનુસંધાન કરીએ, સેવામાં વ્રજની લીલાનું અનુસંધાન કરીએ તો આપણે જેવી રીતે જશોદાજી ની માફક આપણે ઠાકોરજીને જગાવીએ, આપણે જ્યારે ભોગ બી સિદ્ધ કરીએ તો વ્રજભક્તો પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે આરોગ આવે છે, એવી રીતે સિદ્ધ કરીએ તો આપણા અને એવી રીતે આપણે કરીએ તો અને જે આપણા અષ્ટ સખાઓ છે એમના દ્વારા જે રચાયેલા જે પદો છે તો એનું આપણે ગાન કરીએ તો આપણને એવો પ્રેમ થશે. એટલે આપણને એવો વ્રજભક્તો જેવો તો નિર્ગુણ ભાવ ના થાય, પણ એ ભાવનું આપણે જો અનુકરણ એવું કરીએ તો આપણને એની યોગ્યતા આપણને આવી જાય એવી. અને આપણે એ ભાવોને આપણે બોલતા અને સાંભળતા આપણી અંદર એ ધીરે ધીરે એવો ભાવ ડેવલપ થઈ જાય છે એવું કરતા અને એટલે ગુણગાન સહિત આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ તો આપણને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ સિદ્ધ થશે. એટલે એવું સમજમાં આવ્યું રાજા. तात्पर्य यहाँ यही है कि सेवा परायणता, जैसे हम आगे भी इस बात को हमने सोचा है कि जब हम हमारे जैसी प्रारंभिक अवस्था में भगवत सेवा परायण होते हैं तब हमारे अंदर प्रभु के प्रति स्नेह का अभाव होने के कारण और इतनी ज्यादा उत्कट सेवा में प्रवृत्ति नहीं होने के कारण भी ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं लगना या प्रभु की सेवा को छोड़कर हमारे लौकिक कार्यों में, परिवार के लोगों में या हमारी परिवार की सुख दुख आदि की घटनाओं में हमारा चित्त जाना, ये बहुत स्वाभाविक है. उसके कारण हम भले ही महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धयै तनुवित्तजा, अर्थात घर में की जाती तनुवित्तजा सेवा से भगवान में हमारा चित्त प्रवण होता है, परंतु उस चित्त को प्रवण करने में हमारी जैसी प्रारंभिक अवस्था में की गई सेवा जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है. अर्थात वो जो अध्ययन का पक्ष है, कथा का पक्ष है, वो जो है हमारे चित्त को एकाग्र करने में ज्यादा काम करता है. इसलिए बस बात ये है कि अभी के लोग जब हम वैष्णव से बात करते हैं
तो ये कहते हैं कि सेवा का मार्ग है, सेवा से ही तो ठाकुर जी में मन लगता है। ये बात ठीक है, इसमें कोई मना नहीं करता है कि सेवा से ही प्रभु में मन लगता है। महाप्रभु जी ने भी चित्त को कृष्ण प्रवण करने का उपाय तनुवित जा सेवा ही बताई है, परंतु वो तनुवित जा सेवा जब महात्म्य ज्ञान रहित हो जाती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा हो पाता है कि केवल वो क्रियापरायणता से ही हमें प्रभु में प्रेम प्रकट हो जाए। अन्यथा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि हम जानते ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये क्यों करने के लिए कहा जा रहा है। या खास करके जो प्रॉब्लम वैष्णवों की आगे की जनरेशन में आ गई, अर्थात हमारे पहले की जो पीढ़ी थी, हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी हो, तब तक तो क्या था कि हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे माता पिता तक करते थे, इसलिए हमें करना चाहिए। ठाकुर जी इतने सालों से विराज रहे हैं तो ये अपना कर्तव्य है। बस इतनी बुद्धि से उन्हें जो कुछ भी देखा उन्होंने या जो कुछ भी कहा गया उसके अनुसार वो सब कुछ करते गए, आगे पीछे और कुछ भी जाना समझा उन्होंने नहीं, और उसमें उनका जीवन बीत भी गया। अब आगे जाके प्रभु में मन लगा नहीं लगा वो तो खुद जाने, पर ठीक है, जैसे करके भी जीवन निकल गया। पर उसके बाद की जनरेशन में, हमारी जो जनरेशन है, उसमें तकलीफ ये आई कि हम जब बड़ों से पूछते थे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता था। हमें खुद को भी पता नहीं होता है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पब्लिक है उनके साथ तकलीफ ये हुई कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा, हम बिना जाने समझे कुछ नहीं करेंगे। वो प्रकार का एक माइंडसेट हमारा बन गया कालांतर में, और उसके कारण सेवा में या संप्रदाय में प्रवृत्ति ही वैष्णव के आगे की जनरेशन की नहीं रह गई। और सबके सब जो है वो अभी की जनरेशन में तो कुछ भी नहीं रहा, पर हमारे से पहले की जो जनरेशन थी उसमें कितने ही लोग वैष्णव के बच्चे आर्य समाजी हो गए और कितने ही लोग स्वाध्याय परिवार के साथ जुड़ गए। उसका कारण यही था कि उन्हें जो भी अध्ययन का पक्ष यहाँ कमी जिसकी लगती थी वो पक्ष वहां से पूरा होता था, क्योंकि जो आर्य समाजी हैं वो लोग भी इन चीजों को, ठीक है, हम जानते हैं कि वो बात जो वो बताते हैं वो वेद विरुद्ध है, वेद सम्मत नहीं है, परंतु जो कुछ भी वो कहते समझते थे उस तरफ लोगों की रुचि बढ़ गई। और स्वाध्याय परिवार से गीता जी का जो अध्ययन का क्रम पांडुरंग शास्त्री ने चलाया था उसमें लोगों का मन लग गया। इसलिए वैष्णव, अधिकतर वैष्णव, आई मीन ऑलमोस्ट 60-70% वैष्णव के आगे की जो जनरेशन है वो आर्य समाजी हो गई या स्वाध्याय परिवार के साथ जुड़ गई, उन्होंने वैष्णवता छोड़ दी, महाप्रभु जी का संप्रदाय छोड़ दिया। बस उसका एकमात्र कारण यही था कि उन्हें बिना समझे करने के लिए कहा जाता था कि हमें ये करना है, तुम्हें करो। आज तक सब लोग यही करते आए हैं, और बाकी हवेली मंदिर का कल्चर तो उसके लिए इन चीजों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा ही, क्योंकि लोगों को वो दर्शन करने से या वो सजावट देखने में इंटरेस्ट नहीं आता था। लोगों को लगता था कि ये सब क्यों है और क्या है, पर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो तात्पर्य है कि प्रारंभिक अवस्था में भगवत सेवा तो अवश्य ही प्रभु में प्रेम करने, प्रकट करने का मुख्य साधन है, परंतु महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन और गीता भागवत आदि शास्त्रों से प्रभु के स्वरूप को जानना, अपने कर्तव्य को समझना जो है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट पक्ष है। खास करके हम अभी जिस समय में जी रहे हैं तब उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ताकि आदर्श व्यवस्था तो यही होनी चाहिए कि व्यक्ति ब्रह्म संबंध लेने से पहले अर्थात शरण दीक्षा ले ली जाए, भले अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा ले ले, पर उसके बाद वो षोडश ग्रंथों को पढ़े, मिनिमम षोडश ग्रंथ तो पढ़े ही पढ़े, षोडश ग्रंथ भी पढ़े और सामान्यतः गीता का भी अध्ययन करे। भले पूरा समझ ना आए परंतु सामान्यतः गीता और षोडश ग्रंथ का अध्ययन करे, अपने कर्तव्य को समझे और फिर ही उसे ब्रह्म संबंध दीक्षा दी जाए। आदर्श व्यवस्था ये होनी चाहिए। पर यदि इतना आदर्श पॉसिबल न भी हो तो भी हम मानो कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद हमें समझ में आया या हम अभी जिस जंक्चर पे हैं वहां से हमने पढ़ना समझना शुरू किया, तो इस पक्ष को प्रभु में प्रेम प्रकट करने के माध्यम के रूप में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो खास करके हम जैसे जीवों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पक्ष है, सेवा के जितना ही इम्पोर्टेंट। और जब तक हमें वो समझ में ना आए और तब तक परिवार वैष्णव न हो या हमने सेवा शुरू न की हो, तो सेवा शुरू करने से पहले इन सब समझ के फिर सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए।
तब जाकर प्रभु में प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि रुचि की अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें बिना जाने समझे यदि हमें कुछ करने के लिए कह दिया जाए तो उसका रिएक्शन जो है वो उल्टा आता है, हम चाहते हैं ऐसा नहीं आता। कुछ पूछना है? हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। રાજા, એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે ને એવું ઘણા બધા એમ કહીએ આપણે કે આપણે જયારે ભગવત સેવા કરીએ ત્યારે સ્વરૂપ ભાવના, ભાવ ભાવના ને લીલા ભાવના, એ ત્રણ ભાવના કરતા કરતા આપણો ભાવ સિદ્ધ થશે અને એ ભાવનો અંગીકાર પ્રભુ કરશે ત્યારે સેવા આપણી ફલિત થશે કે જે ચિત્તમાં આપણી ફોરાવશે। તો એને આમાં સ્વરૂપ ભાવના, ભાવ ભાવના અને લીલા ભાવના એને કઈ રીતે આપણે જોવું જોઈએ? એ આમાં આવ્યું જ હતું, શાયદ તમે સેશન જોઈન નથી કર્યું। આ પ્રમેયરત્ન સંગ્રહમાં જ થોડા પેજ ઉપર જશો ને તો ત્યાં વિષય આપેલો જ છે, એમાંથી જોઈ લેશો તો સ્પષ્ટ થઈ જશે। હા ભલે રાજા, દંડવત પ્રણામ। હેલો રાજા। હા રાજા, મને એક વિચાર એવો આવતો હતો કે આપણે લાઈક મહાપ્રભુજી આપણને જે બતાવ્યું છે કૃષ્ણ સેવાનું જ, આમ તો ફર્સ્ટ આપણને કૃષ્ણ સેવા કરવાનું બતાવ્યું છે, પણ જો જેનાથી આપણને પોસિબલ ના બનતી હોય તો એના માટે અનુકલ્પ બતાવ્યું છે, ગુણગાન, શ્રવણ, કીર્તન ને સ્મરણ। તો આપણે આમ એટલે આપણે જોયું કે સેવામાં તો આપણે કેવું કે જે આપણે બધા જે પ્રભુની સેવામાં આપણે જે જે વસ્તુનું આપણે સમર્પણ કરીએ તો એ બધું વસ્તુમાં બ્રહ્મતા ને નિર્દોષતા આવી જાય અને વસ્તુ પછી એટલે જે પ્રત્યેક પદાર્થનું આપણે જે સમર્પણ કરીએ છીએ એનો ઉપયોગ આપણે જો સ્વયં આપણે કરીએ તો પછી એમાં પછી લૌકિકતા નથી રહેતી અને એમાં પછી રાજસી, તામસી ને એવા લૌકિક ભાવો બધા નિવૃત્ત થઈ જતા હોય છે। એટલે આપણે આવું બધું જોયું હતું તો એટલે આપણે આમ બિગિનિંગ સ્ટેજમાં આપણે જોઈએ તો એટલે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણમાં આપણે બિગિનિંગ સ્ટેજમાં જોઈએ તો પ્રભુમાં તો એવો આપણને સ્વતઃ પ્રેમ તો એવો થતો નથી અને એના એટલે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ અને ગુણગાનમાં આપણે પછી ધીરે ધીરે એ પ્રભુ પ્રત્યે આપણને એવો ભાવ અને એવો સ્નેહ ડેવલપ થશે, પણ એની આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો એની લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણી જે પ્રકારની લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે એ ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહીને જ આપણે લૌકિક વ્યવહારો બધા કરવા પડતા હોય છે, પણ ત્યાં આપણે ઠાકોર સેવામાં કેવું કે આપણે પ્રભુ કેન્દ્રમાં હોય છે, જે પણ આપણે સમર્પણ કરીશું એ બધું પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખીને કરીશું। જ્યારે અહીંયા શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણમાં આપણને જે લૌકિક વ્યવહારો તો આપણને કરવા જ પડશે, તો એ ત્યાં આપણને જે અસમર્પિત ઉપભોગ આપણે કરવો પડશે, તો એમાં પછી પ્રભુ પ્રત્યે જે આપણને સ્નેહ જે પ્રેમ ડેવલપ થવામાં આપણને એવા બધા ઓબ્સ્ટિકલ્સ નહીં આવે, લાઈક આપણા રાજસી, તામસી અને એવા બધા લૌકિક ભાવો નિવૃત્ત કરવાના એ કેવી રીતે થશે અને એટલે પછી એ પ્રેમ કેવી રીતે ડેવલપ થશે એમાં, એટલે હું એ રીતે વિચારતી હતી, એટલે મને એ સમજવું હતું। કારણ કે આપણી સેવામાં તો આપણે પ્રભુને બધું કેન્દ્રમાં રાખીને બધું કરતા હોઈએ કે જેથી કરીને ઓલ ધ ટાઈમ આપણે પ્રભુનો જ વિચાર આવતો હોય, જે પણ કાર્ય કરીશું એમાં પ્રભુનો વિચાર આવશે અને જ્યારે શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણમાં આપણને લૌકિક વૈદિક વ્યવહારો પણ કરવા પડશે, તો પણ જ્યારે આપણે ગૃહ કાર્ય કરીશું તો પણ આપણને એવું ગ્લાનિ તો થશે જ કે પ્રભુ માટે નથી, પ્રભુ માટે આપણે સમર્પિત નથી કરી શકતા, એવું ગ્લાનિ થશે। તો ત્યાં પછી આપણને આવા બધા લાઈક પ્રેમ ડેવલપ કરવામાં, પ્રેમ થવામાં, લાઈક બિગિનિંગ સ્ટેજમાં પ્રેમ સુધીને પહોંચવા માટે પણ આપણને જે આપણામાં જે રાજસી, તામસી આ બધા ભાવો હોય છે તો એ બધા નિવૃત્ત થશે ત્યારે જઈને આપણને થોડો પ્રેમ પ્રભુ પ્રત્યે આવશે। તો એટલે મને એટલે એવું ક્વેશ્ચન થતો હતો। उसमें ऐसा है कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि
जो व्यक्ति सेवा परायण नहीं होते हैं उन्हें ऐसी फीलिंग लाने में और ऐसी भावना करने में समय तो लगता ही है, और ऐसा करने में जो भी हमारी लौकिक आसक्ति हो या हमारे राजसी तामसी भाव हो, वो सब का भी प्रभाव तो पड़ता है, ये तो सही बात है। और ये भी ठीक है कि वो साधना उतनी इजी नहीं है। सेवा के द्वारा प्रभु में चित्त लगाना सरल है, पर केवल कथा पारायण और वैष्णव के संग में रह के ये कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। पर वहाँ बात ये है कि भक्त के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए कोई भी परिस्थिति के कारण भगवत सेवा कर पाना संभव नहीं है, वो यदि यही उद्वेग बनाए रखेगा कि मुझसे सेवा नहीं होती है, सेवा नहीं होती है, तो भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करने का तो कोई चांस बचता ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसे हो नहीं पाने वाला है, कम से कम अभी की परिस्थिति में। इसलिए खुद हम जो कंडीशन में हैं उसमें हमें अपना अपराध या कोई अनधिकार समझ के जिस किसी तरह से भी प्रभु के साथ जोड़ा जा, उसमें जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी उसके हमें अलग अलग विकल्प अवेलेबल करवाते हैं कि भगवदियों के संग में रहकर श्रवण कीर्तन स्मरण करो। यदि हमारा नेचर एकांतवास का हो तो एकांतवास करके गीता भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन करो। यदि अकेले हो तो तीर्थाटन परायण हो जाओ या गुरु की परिचर्या में रहो, वहां जाके जो कुछ भी भगवत सेवा संबंधी परिचर्या हो पाए वो करो। लोग अंतेवासी की तरह बहुत से शिष्य अपने गुरु के घर में जाकर रहते थे, जैसे दामोदर दास हरसानी और कृष्णदास महाप्रभु जी के साथ रहे, उस तरह ये सब विकल्प महाप्रभु जी ने दिए हैं। ये बात सही है कि ये पाथ जो है वो सरल नहीं है, डिफिकल्ट है। प्रभु में चित्त को स्थिर कर पाना भी मुश्किल है, असमर्पित का उपभोग आदि भी विघ्न तो इसमें आते ही हैं। उनकी तरह ये एकदम एक मानसिक प्रक्रिया हो जाती है। मन से हम प्रभु के साथ जोड़ने को प्रयत्न करें, ऑल द टाइम प्रभु का अनुसंधान फोर्सफुली भी बनाए रखें, तब ये प्रक्रिया जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है। पर बात यह है कि कम से कम सेवा नहीं कर पाने का उद्वेग निरंतर बनाए रखने के करते इस प्रकार किसी तरह से भी प्रभु के साथ जुड़ जाना अच्छा विकल्प है। और फिर क्या होता है कि जिन जीवों को जिनकी रुचि ही ना हो शुरुआत में, उनकी तो बात अलग है, बाकी कुछ लोगों को तो फिर उसका व्यसन हो जाता है। अर्थात जो लोग निरंतर बहुत लंबे समय से, जैसे हम सेवा में बहुत लंबा समय, कोई 4-5 दिन में हमारा सेवा में भी मन नहीं लगता है। आज हम बचपन से करते आए हैं और इतने बड़े हो गए करके अब हमें उसकी आदत हो गई है, तो वो हमारे शेड्यूल में, हमारी हैबिट में आ गया है। इसलिए सेवा के बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। वो शुद्ध रूप से प्रेम नहीं है, परंतु बस एक लाइफस्टाइल है और एक आदत है, वो धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ रही है। ऐसा ही कथा पक्ष परायण जो व्यक्ति है उसके साथ भी होता है, पर उसके लिए उसे टाइम देना पड़ता है। अर्थात हमें निरंतर उस प्रोसेस के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। जैसे आज हम लोग इतने टाइम से प्रमेय रत्न संग्रह को शुरू किए, हमें 1.5 साल हो गया। अब आज इतने समय से हम कर रहे हैं, हमें एक आदत हो जाती है कि रोज कम से कम हम आधा घंटा तो करते हैं। अब उसमें कुछ दिन हमें नहीं मिलता तो हमें इनकम्प्लीट लगता है कि नहीं, आज के दिन में कुछ मिस हो गया। तो ये एक ऐसी 1-1.5 साल की जैसी प्रोसेस है, ऐसे एक लंबा टाइम होता है उसमें भी स्थिर होने का। तो धीरे धीरे जब हम उसमें सेटल हो जाते हैं, तब फिर प्रभु के गुणों का अध्ययन पठन करने में भी हमें आनंद आने लगता है। जैसे प्रभु संबंधी परिचर्या सेवा करने में हमें अच्छा लगता है, उसी तरह गीता भागवत में से जब हम भगवान की दिव्य लीला, गुण, क्रिया, स्वरूप आदि का वर्णन पढ़ते हैं, तब उसमें भी हमें आनंद लगने लगता है। फिर उसकी भी एक हैबिट हो जाती है, और वही आदत जो है वो फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभु के स्वरूप का चिंतन बनाए रखना, ठाकुर जी के स्वरूप को सोचना या प्रभु की लीला को मेंटली ही एंजॉय करना, वो सब उस आदत के बाद का जंक्चर होता है। टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, लंबी प्रोसेस है और थोड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि ये एकदम सेल्फ रिलायंट है। हमें अपनी ही सेल्फ डिसिप्लिन से इसे मेंटेन करना होगा। जी राजा, बराबर कीधું। हाँ, प्रणाम राजा। हाँ,
राजा, ये जो अभी आपने बात कही, उस अंतर्गत जो भक्त होगा उसे भी भागवत पूजन या प्रभु का पूजा आदि जो प्रकार है वो तो अवेलेबल हो सकता है, अगर उसे मात्र समर्पण की या मतलब वही भावना मुख्य हो तो वो भी उस तरीके से जुड़ तो सकता है ना साथ में तीर्थाटन या उस समय में भी। हाँ, वो तो जुड़ सकता है, डिपेंड कैसी कैसी कैपेसिटी है। स्त्रियों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, पुरुषों को मुश्किल नहीं होती है, सब अपनी अपनी समस्या है सबकी। बाकी सेवा का भी ऐसा है कि हमने तो क्या है कि मानसिक रूप से उसका एक फॉर्मेट सोच रखा है कि सेवा इसी तरह, इसी माहौल में, इसी मेथड से होती है। ताकि जैसे हम पुराने वैष्णव का देखते हैं तो हम जितनी सुविधा से और जितनी फुर्सत से, मतलब पूरी अनुकूलता से सब साधन सामग्री के साथ भगवत सेवा करते हैं, उतना तो बहुत रेयरली लोग कर पाते थे। तब बहुत डिफिकल्टी होती थी लोगों को सेवा करने में। और यहाँ तक कि साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ये तक आज्ञा करते हैं कि यदि अपने घर में भगवत सेवा करने की अनुकूलता न हो तो कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा कोई भी मर्यादा मार्गीय मंदिर कि जहाँ देव मूर्ति न हो, कोई निर्जन स्थान हो, कोई शून्य देवालय हो, वहां जाके भगवत सेवा पहुंच के अपने घर वापस आ जाओ। ये और प्रकार महाप्रभु जी ने बताया है। तो बात तो ये है कि सेवा का एक फिक्स फॉर्मेट हमने जो मन में सोच रखा है, उसके कारण हमें वो अनुकरणीय या एप्लीकेबल नहीं लग पाती है। ये हमारी मानसिक प्रॉब्लम है, या अभी हमने ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, उसकी प्रॉब्लम है। जैसे अब किसके लिए क्या अनुकरणीय और किसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी तो बात हम नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कंडीशंस है। पर जैसे मैं एक बात बताऊं, कच्छ में हमारे मांडवी से 1 घंटा दूर नागरेचा करके एक दरबार लोगों का गांव है, पूरे सब राजपूत लोग रहते हैं वहाँ। वहाँ के दरबार फैमिली में एक वैष्णव लड़की शादी करके आई। अब राजपूत लोग तो ज्यादातर सब देवी के भक्त होते हैं, तो वो सब भी देवी भक्त थे। और घर में जो शादी करके लड़की आई वो एक वैष्णव लड़की थी। अब यहाँ तो असंभव था उसके लिए, वो भी एक दरबार फैमिली की, राजपूत फैमिली की लड़की के लिए, आज से कम तो 100 साल पहले की बात समझ लो। मेरी 5वीं जनरेशन, मतलब मेरे ताजी के भी ताजी, घनश्याम लाल जी ताजी के समय की। तब वो लड़की ब्याह करके आई और गेहूं रखने का जो बर्तन होता है ना, जिसमें हम गेहूं भरते हैं, उसमें ठाकुर जी विराजते थे उसके। और घर में सब लोग उठते, उससे पहले ठाकुर जी की सेवा का क्रम पहुंच लेती, और रात को सब लोग सो जाते, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा का क्रम पहुंचती। ऐसे उतने कितने वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की। घर में कोई नहीं जानता था कि ये क्या करती है और कब करती है, घर का एक भी मेंबर नहीं जानता था। ये इंटेंसिटी है भक्ति की। और उसके कारण उनके परिवार के जो बुजुर्ग थे, उनको रात को स्वप्न में ठाकुर जी ने ये आज्ञा दी कि आपके परिवार की ये लड़की इस प्रकार से मेरी यहाँ सेवा करती है, और आप लोग यदि उसको सहयोग नहीं दोगे तो आपके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की उनको स्वप्न में आज्ञा हुई। और फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने घर में सबसे पूछा कि ये करता कौन है। तब उन्हें पता चला कि उनके घर की बहू ये करती थी। फिर ठाकुर जी पधराए, उनके यहाँ जो देवी विराजते थे वो देवी के स्वरूप को उन्होंने विसर्जित कर दिया। वो पूरा परिवार जो 60-70 लोगों का जो पूरी फैमिली है, उन्होंने हमारे ताजी से आके ब्रह्म संबंध लिया, और तब से वो परिवार वैष्णव हो गया। तात्पर्य है कि सेवा कौन कैसे कर सकता है, कब कर सकता है, इसका तो हम डिसीजन ले नहीं सकते हैं। हमने अभी अपनी सेवा का एक फॉर्मेट बना दिया है कि सेवा इसी प्रकार हो सकती है, और उसके लिए इतनी इतनी चीजें तो मिनिमम आवश्यक होती ही हैं। ये हमने सोचा है, पर ये एक्सपेक्टेशन जो महाप्रभु जी ने नहीं बताई है। जैसे महाप्रभु जी भी 3 पृथ्वी परिक्रमा करते समय, जैसे हम जानते हैं कि यमुनाष्टक महाप्रभु जी ने प्रकट किया, वो समय गोकुल भी दिखाई नहीं देता था, उतना बंजर था व्रज भी पूरा। ऐसे कंकड़ पत्थरों में, असंभावनाओं में, आगे कोई गांव है भी या नहीं भी, इसे कोई भी न जानते हुए महाप्रभु जी ने 3 पृथ्वी परिक्रमा की, वहां मुकुंद राय जी की सेवा कैसे की होगी। तो बात यह है कि सेवा का कोई एक फिक्स स्वरूप नहीं है। हमने अब अपनी परंपरा में ऐसा देखा है, हम अपने आसपास वैष्णवों को ऐसा ही करते हुए देखते हैं।
करके हमें ऐसा लगता है कि सेवा होती है तो इसी प्रकार होती है, उसका यही प्रकार होता है। यदि तुम ऐसा नहीं निभा सकते हो तो मत करो, निभा सकते हो तो करो। अब ये ऐसी एक मेंटालिटी हमने क्रिएट कर दी है, उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सेवा तो हम नहीं कर सकते। बाकी महाप्रभु जी ने जितना वाइड सेवा के स्कोप को रखा है, उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए घर में 1-2 घंटा के लिए भी सेवा की अनुकूलता न हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अतिशय प्रतिकूल परिस्थिति तो अलग बात है। अब आज के जमाने में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर का कोई भी मेंबर इतना भी कोई पराधीन नहीं होता है कि हमें किसी की बात सुननी ही पड़े। यदि हम अपनी हर चीज के लिए जिद कर सकते हैं तो अपने स्वधर्म को निभाने के लिए भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। अब वो कौन अपनी कैपेसिटी में कितना बोल्ड स्टेप ले सकता है वो तो हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी चॉइस है, उसकी तो हम बात नहीं कर सकते और किसी को इसका विधान नहीं कर सकते। पर तात्पर्य ये है कि सेवा को इतना हाइप करके और ऐसा एक फिक्स्ड फॉर्मेट देने की भी आवश्यकता अपने यहाँ नहीं रही है। समर्पण इक्वल्स टू सेवा और सेवा इक्वल्स टू समर्पण, बस इतना हम सोच के रखे हैं तो हमें समझ में आ सकता है कि सेवा किस तरह करनी चाहिए। हमारा जो कुछ भी है वो हमारे स्वामी के लिए है, बस इस भाव को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे भी इम्प्लीमेंट कर पाओ वो सेवा है। जी राजा बराबर है। ठीक है, आज का यहाँ रखें, आगे का विषय कल करें।